بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدیم انسانی معاشروں میں نسب کی طہارت و پاکیزگی کو شخصیت کی طہارت اور پاکیزگی پر دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے قدیم اہل عرب بالخصوص نسب اور رشتہ داری کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے اور اس بنیاد پر شخصیات کے حسن و قبیح کا تعین بھی کرتے تھے۔ وہ خون کی پاکیزگی اور نیک نسب ہونے پہ فخر و مباحت کا اظہار کرتے اور شجرہ نسب کے حفظ اور اس کے چھان بین کا خوب اہتمام کرتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی قوم نے نسب کو اتنے باوقار انداز میں کبھی یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا، اس لیے آپ کا سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لاسانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی، امانت داری، ہمدردی اور رحم دلی کی صفات کے لیے پورے جزیرہ نما عرب میں مشہور اور منفرد تھا، جس کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی کریم نے مختلف مقامات پہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ کے آباء و اجداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل کی نسل سے تھا، جنہیں عام طور پر بنو اسماعیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام قدیر کیدار تھا، جن کی نسل میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبیلوں کے جد اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ کا تعلق بھی عدنانیوں کی ایک شاخ سے تھا جو قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شاخ فہر بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین انساب کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حضرت محمد کا سلسلہ نسب ان کے جد امجد حضرت عدنان تک نہایت ہی صداقت اور درستگی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک کا حضور کا شجرہ نسب ناقابل ترتیب طور پر واضح ہے، جو 20 واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ابن حشام فرماتے ہیں، محمد بن عبداللہ ابن مطلب بن ہاشم، عمرو بن عبد مناف، المغیرہ بن قصا، زید بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر، قریش بن مالک بن النضر، قیس ابن کنان بن خزیمہ بن مدرکہ، عامر بن الیاس بن مدر بن نذار بن معد بن عدنان بن عود، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، شیبہ بن ہاشم، عمرو بن عبد مناف، المغیرہ بن قطع، زید بن کلاب بن مرہ بن لوی بن غالب بن فہر، قریش بن مالک بن النضر، قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدر کے، عامر بن الیاس بن مدر بن نذار بن معد بن عدنان بن عد۔ ایک اندازے کے مطابق حضرت عدنان کی پیدائش 122 قبل مسیح میں ہوئی تھی، جبکہ فہر بن مالک 208 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ 10 مؤرخین کے اندازے کے مطابق حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا دور 2000 قبل مسیح کا تھا۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک اندازے کے مطابق 25 صدیوں کا فاصلہ ہے، جبکہ عدنان اور ابراہیم کے درمیان تقریباً 18 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ ابن سعد کی بیان کردہ روایت کے مطابق ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے نسب کا ذکر کرتے، یعنی ماہرین انساب کذب النسابون ہوئے حضرت عدنان پہ رک جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس سے آگے نسب کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ لیکن ایک اور روایت کے مطابق، جس کو امام احمد اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اس میں حضور نے فرمایا، اللہ نے مخلوقات کی تشکیل کی اور مجھے ان کے بہترین گروہ میں رکھا۔ اسی کی مثل ایک حدیث امام بخاری نے بھی نقل کی، اور مذکورہ بات اتنے وثوق سے تبھی کہی جا سکتی ہے جب کہنے والے کا نسب معلوم ہو اور اس کے تمام لوگ بھی اس کے نزدیک معروف ہوں۔ رسول اللہ کے سلسلہ نسب کی تفصیلات کے حوالے سے مورخین نے حضرت عدنان اور ابراہیم کے درمیان 10، 20 اور 25 واسطوں کا ذکر کیا ہے۔ تاہم سب سے مناسب روایت یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عدنان اور ابراہیم کے درمیان 40 واسطے تھے۔ ابراہیم اور حضرت عدنان کے درمیان تقریباً 1800 سال کا فرق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ان کے درمیان صرف 10، 15 یا 20 آباء و اجداد ہوں۔ حضرت عدنان سے آدم تک مکمل سلسلہ نسب جس کو طبری نے بیان کیا ہے، کچھ اس طرح سے ہے: عدنان بن عود بن حمیسہ، وحمیسہ ہو سلیمان وہو من ابن حمیسہ وہو مہدہ وهو الشاجب ابن سلیمان وهو منجر وهو نبت بن عوث وهو ثلعبہ ابن بورہ وهبیز بن شہا، سعد رجب ابن یعمانہ وهو قموال ابن کسدانہ وهو محلم ذوالعین ابن حیرانہ وهو العوام ابن بلداسہ وهو التحمل ابن بدلانہ وهو لاف وهو الرامہ ابن طبحہ وهو الطالب وهو الایقان ابن جہمی وهو جاہم وهو علہ ابن ماشی وهو تاہش وهو الشہدود ابن معجالی وهو ماخی وهو ذریب خاتم النار ابن اقارہ
هو آفی وهو أبقر أبو الجناب عقاري وهو آقر وهو إبراهيم جامع ابن بضاعي وهو إسماعيل ذو المطابخ ابن أبدعي وهو عبيد وهزن الأبطان ابن حمادي وهو همدان وهو إسماعيل ذو العروج ابن بشماني وهو بشين وهو العظيم في المحل ابن يسراني وهو بثرم وهو الطمحة ابن بخناني وهو يحزن وهو القثور ابن نلحاني وهو الزايد ابن آثار وهو عاسر وهو النديان ذو الإنده ابن قادور إلى بني جاوان ابن القادور الثمي جاعلهم ثانيه ابن قنادي وهو قنار وهو إيلا ابن ثامار وهو باميه وهو دس العتشق وهو دس أجمل الخلق بن فالج وقتورة ابن مقصر وهو مقاصري وهو حسن ابن سمي وهو سماء وهو المجشر ابن مزرة وقال مرهر ابن صنفا وهو السمر وهو السفي ابن جعسم وهو إعرام وهو النبوت وهو قيذر ابن إسماعيل صادق الباد ابن إبراهيم خليل الرحمن بن تاريخ ابن ناجور بن حمیدہ اور حمیدہ ہے اور وہ الشاجب ہے، بن سلیمان اور وہ منجر ہے اور وہ نیت بن عوس ہے اور وہ ثعلبہ بن بورہ ہے اور وہ بوزن شوحہ ہے اور وہ سعد رجب ہے، بن یعمانہ اور وہ قموال بن کستانہ ہے اور وہ محلم ذوالعین بن حیرانہ ہے اور وہ العمام بن بلداسہ ہے اور وہ المتحمل بن بدلانہ ہے اور وہ یدلاف ہے اور وہ رائمہ بن تہبہ ہے اور وہ طالب ہے اور وہ العیقان بن جہمی ہے اور وہ جاحم ہے اور وہ علا بن محشی ہے اور وہ تاحش ہے اور وہ الشحوت بن معجالی ہے اور وہ ماخی ہے اور وہ الذریب خاتم النار بن عقارہ ہے اور وہ عافی ہے اور وہ ابقرہ ابو الجناب آقاری ہے اور وہ آقر ہے اور وہ ابراہیم جامع بن بدائی ہے اور وہ اسماعیل ذو المطابخ بن عبدائی ہے اور وہ عبید ہے اور وہ ویزن الطعان بن حمادی ہے اور وہ حمدان ہے اور وہ اسماعیل ذو العوج بن بشمانی ہے اور وہ بشین ہے اور وہ المطعم فی المحل بن بثنانی ہے اور وہ بثرم ہے اور وہ المطمح بن بحرانی ہے اور وہ یحزن ہے اور وہ القصور بن نلحانی ہے اور وہ یلحن ہے اور وہ العنود بن رعوانی ہے اور وہ رعوہ ہے اور وہ الدعاء بن عقاری ہے اور وہ عاقر بن داسان ہے اور وہ الزائد بن آثار ہے اور وہ آصر ہے اور وہ الندوان ذو الانید دیہ بن قادور ہے جن کی طرف حکومت گئی اور وہ ہی بنی جاوان بن القاد ہے، پھر حکومت واپس ان کی طرف لوٹ آئی، پھر ابن قنادہ ہے اور وہ قنار ہے اور وہ ایامہ بن ثامار ہے اور وہ بہامی ہے اور وہ دوس العتق ہے اور وہ دوس خوبصورت ترین ہے، بن ابن فالج قطورہ ہے، پھر ابن مقصر ہے اور وہ مقاصری ہے اور وہ حسن ابن سمی ہے اور وہ سما ہے اور وہ المجشر ابن مزرہ ہے جو مرہر بن صنفا کہلاتا ہے اور وہ السمر ہے اور وہ الصفا ابن جعصم ہے اور وہ عیرام ہے اور وہ النہیت ہے اور وہ قیدر بن اسماعیل صادق الباد بن ابراہیم خلیل الرحمن بن تارخ بن ناحور بن سعرو بن ارغوہ بن بالغ ہے اور وہ فالج بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمک بن متشالخ بن اخنوخ ہے اور وہ ادریس بن ید بن محلائل بن قینان بن انوش بن سیس ہے اور وہ حبت اللہ ابن آدم ہے۔ اگرچہ حضرت عدنان کے سلسلہ نسب کے بارے میں محققین اور سیرت نگاروں نے مختلف بیانات قلم بند کیے ہیں، لیکن کم از کم درجے میں یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ایک ممتاز شخصیت کے مالک تھے اور ان کا سلسلہ نسب متعدد آباء و اجداد سے ہوتا ہوا حضرت اسماعیل تک پہنچتا ہے۔ ان کے ناموں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ناموں کا ترجمہ مختلف زبانوں سے کیا گیا ہے اور مختلف مترجمین نے ان اسماء کے مختلف انداز میں تراجم کیے ہیں، جس کی وجہ سے بعض مقامات پر ابہام پایا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے نسب مبارک کا یہ سلسلہ اہل کتاب نے بھی اپنی کتابوں میں فراہم کیا ہے اور قدیم اہل عرب کے اشعار سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ مزید برآں اس نسب کی تائید عرب قبائل کے لوگوں کے ایک بڑے گروہ نے بھی کی ہے جو نسب کے میدان میں حقیقی ماہر اور اس فن کے اصل علمبردار تھے۔ امام السحاری العتبی کے قول کے مطابق سلسلہ نسب اس صورت میں معتبر سمجھا جاتا ہے جب وہ بادشاہوں کے پاس محفوظ دستاویزات ان کے کارناموں اور قدیم لوگوں کے اشعار سے ثابت ہو، جیسے کہ اہل یمن کا طریقہ تھا۔ مذکورہ بالا شواہد سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب دنیا میں آئے ہوئے یا آنے والے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ مزید اس بات کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے کہ حضرت محمد ابراہیم کی اولاد تھے اور ان کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے حضرت عدنان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے
اگرچہ اسماعیل اور حضرت عدنان کے درمیان ناموں اور اولاد کی تعداد میں ابھی تک اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس بات پہ مورخین اور علماء کا اتفاق ہے اور اہل عرب میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت عدنان ابراہیمی نسب سے ایک معزز شخص تھے۔ حضرت عدنان کی اولاد زیادہ تر شمالی عرب میں مقیم تھی، جن میں ثقیف، تمیم، کنانہ اور خاص طور پر قریش جیسے مشہور قبائل بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ کے سلسلہ نسب کی عظمت و شرافت۔ انبیاء کرام کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں اور پاک انساب سے رہا۔ جعفر ابن ابو طالب نے حبشی بادشاہ نجاشی کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا۔ حضور پر ایمان لانے کی ایک وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس کی نسب، سچائی، دیانت اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص کسی بھی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنا حسب و نسب اور اپنا شجرہ لوگوں کے درمیان واضح کرنا پڑتا تھا، جس سے اس کی شخصیت کے حسن و قباح کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ شاید اسی لیے رسول اللہ نے اپنے نسب شریف کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ یعنی میں محمد اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں اور عربوں کے عمدہ ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے تمام آباء و اجداد اپنی قوم میں کردار، شرافت، وقار اور تقوی میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرے تمام آباء و اجداد نے صرف شرعی نکاح سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری، زنا یا کسی اور قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات میں بہترین ہے۔ امام ترمذی نے رسول اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی، پھر مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کو خاندان کی شکل دی اور مجھے ان میں سے بہترین خاندان میں رکھا، پھر اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں ان سب سے بہتر رکھا۔ مذکورہ حدیث اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ حضرت محمد کے نسب میں تمام آباء و اجداد اپنے دور کے توحید پرست، مومن اور عظیم انسان تھے۔ اس کی تائید امام زرقانی بھی ایک روایت کی نقل کرتے ہوئے کرتے ہیں، جس میں کہا گیا کہ نبی اکرم ہمیشہ پاک مردوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتے رہے تھے۔ قاضی عیاض اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کا نور ہمیشہ شریف اور پاکیزہ انسانوں میں رہتا تھا۔ آپ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آپ زمین پہ تشریف لائے تو آپ کا نور آدم کی صلب میں موجود تھا، پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد یہ نور صلب ادریس تک پہنچا اور پھر صلب نوح تک پہنچا دیا گیا۔ نوح سے یہ سام میں منتقل ہوا اور پھر ابراہیم تک پہنچا۔ اس نور نے ہر نسل و زمانے میں پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور آدم و حوا سے عبداللہ اور آمینہ تک پہنچا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ رسول اللہ کے تمام آباء و اجداد اپنے وقت کے بزرگ اور معزز ترین لوگ تھے۔ ان کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ حضرت محمد کے نسب کی عظمت اور شرافت عرب میں اس قدر مشہور و معروف تھی کہ مخالفین نے بھی اس عظمت کو تسلیم کیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابو سفیان بن حرب نے رومی شہنشاہ ہرقل کے دربار میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ محمد ان سب میں معزز ہیں۔ ہرقل نے حضرت ابو سفیان بن حرب سے رسول اللہ کے نسب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ محمد پاکیزہ اور بہترین نسب والے ہیں۔ روایت ہے کہ ہرقل نے ابو سفیان سے رسول اللہ کے بارے میں بہت سے سوالات کیے تھے۔ جب اس نے ابو سفیان کے تمام جوابات سنے تو اس نے تمام سوال و جواب پہ تبصرہ کیا اور حضور کے سلسلہ نسب کے بارے میں فرمایا، بے شک میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں اس لیے پوچھا تھا کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہ نسب میں سب سے زیادہ بزرگ و برتر ہوں گے، اور یہ اس لیے تھا کیونکہ انبیاء قوم کے معزز ترین لوگوں میں سے بھیجے جاتے ہیں۔ حضور کا ایک اور مخالف عتبہ بن ربیعہ جو قبیلہ قریش کے نامور سرداروں میں سے ایک تھا، اسے جب قریش کی طرف سے اسلام کی دعوت کے ابتدائی مرحلے میں بھیجا گیا تو اس نے اسلام کی دعوت کو ترک کرنے کے بدلے میں حضور کو متعدد پیشکشیں کی۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور گفتگو شروع کی تو اس نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا تھا کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں اپنے حسب، نسب اور کردار کے اعتبار سے بزرگی والے ہیں۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جامع المعجزات ہے۔
पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम को जो मोजज़े अता किए गए वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद मुबारक में जमा हुए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल बाल मोजज़ा करार पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदात में से कई जमादात, नबातात और हैवानात से मुताल्लिक है। कंकरियां आका करीम अलैहिस्सलाम के हाथ में तस्बीह करती, शजर व हिजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजते और सजदा करती, हिरनियां आपको जामिन तस्लीम करती और ऊंट नबी करीम अलैहिस्सलाम से फसाने गम बयान करते। अहदीस व सीरह मुबारका की कुतुब में ऐसे मुताद्दिद खुशनसीब दरख्तों का जिक्र भी मिलता है जिन्होंने आका करीम की ताज़ीम और तकरीम की और मुकाम नबूवत को पहचाना। कई दरख्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकार पर जमीन को चीरते हुए दरबार रिसालत में हाजिर हुए और इकरार नबूवत की सादत हासिल की। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला ने अमली मोजज़ात अता फरमाए, लेकिन सरवरे कायनात को हजारों की तादाद अमली मोजों के साथ साथ एक बहुत बड़ा इल्मी मोजज़ा कुरान पाक अता फरमाया। जिंदा और हमेशा बाकी रहने वाला यह अजीम शान मोजज़ा है जो अपनी मोजज़ाना हैसियत और शान के साथ आज भी उम्मत के पास जूं का तू मौजूद है। लफ्ज मोजज़ा इज्ज से निकला, जिसके मायने कोई ऐसी चीज जिससे अक्ल आजिज आ जाए, कोई ऐसा वाकया जो मामूल से बिल्कुल मुनफरिद हो, जो इंसान को हैरत में मुब्तला कर दे। बिला शुबह अंबिया का मोजज़ा कुदरत इलाही का करिश्मा होता है। एक दफा मक्के की वीरान घाटी में नबी करीम अलैहिस्सलाम का रिकाना बिन अब्द यजीद, जो कि कुरैश का एक ताकतवर पहलवान था और कुरैश में इससे बड़ा कोई पहलवान न था, उससे सामना हो गया। आका करीम ने उसे इस्लाम की दावत दी। उसने मुतालबा किया कि अगर आप मुझे कुश्ती में हरा दे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। आपने उसे एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा पछाड़ा। उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहा कि यह बड़ी हैरत की बात है कि आपने मुझे पछाड़ दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने इससे भी अजीब व गरीब चीज पेश करूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम अल्लाह से डरो, अपनी रविश बदलो और मेरी पैरवी इख्तियार करो। उसने पूछा कि आप क्या दिखाना चाहते हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस दरख्त को अपने पास बुलाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को हुक्म दिया और वो दरख्त अपनी जगह से चलकर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आया और उसके बाद आपने हुक्म दिया कि वापस जाओ, तो वो वापस अपनी जगह चला गया। इसी तरह इकाशा बिन मुहसिन मारका बदर में बड़ी बेजिगरी से लड़ रहे थे कि उनकी तलवार लड़ते लड़ते टूट गई। वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक खजूर की छड़ी अता फरमाई और फरमाया, इकाशा जा दुश्मनों से लड़। इकाशा रदियल्लाहु अन्हु ने वो लकड़ी पकड़कर झटका दिया तो एक लंबी तलवार बन गई, जिसकी धार तेज और चमकदार थी और उसमें मजबूती थी। हजरत इकाशा ने यह तलवार बदर के मैदान में खूब इस्तेमाल की। इस तलवार का नाम अलऔन था। हजरत इकाशा के पास ये तलवार एक मुद्दत तक रही और वो उसके जौहर जिहाद में दिखाते रहे। इसी तरह हजरत क़तादा बिन नुमान रदियल्लाहु अन्हु मैदान उहद में बड़ी बेजिगरी से लड़े और अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए। मैदान उहद में हजरत क़तादा बिन नुमान की आंख जख्मी हुई और पुतली निकलकर उनके गाल पे लटकने लगी। हजरत क़तादा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से वो पुतली वापस आंख में रखी तो आंख बिल्कुल ठीक हो गई। ये आंख दूसरी आंख से भी ज्यादा तेज निगाह और बेहतर थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं उक़बा बिन अबी मुअत्तिर की बकरियां चराया करता था। एक दफा नबी करीम अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। आका करीम ने अर्ज किया कि तेरे पास दूध है? मैंने अर्ज किया हाँ दूध है, मगर वो किसी की अमानत है, मैं देने का मजाज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी जो कभी हामला ना हुई हो और ना शीरदार हो? मैंने अर्ज किया कि हाँ ऐसी बकरी तो है। फिर मैंने वो बकरी पेश खिदमत की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसके थनों पे हाथ फेरा। थोड़ी देर सहलाते रहे, उसके थनों में दूध उतर आया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक बर्तन में भरकर दूध खुद भी पिया और अपने साथी हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को भी पिलाया। उसके बाद बकरी के थन फिर पहले जैसे हो गए। एक बार अबू लहब के बेटे उतैबा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसके हक में बद्दुआ की, ऐ अल्लाह अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को इस पे मुसल्लत कर दे। अभी आका करीम अलैहिस्सलाम की बद्दुआ ऐसी पूरी हुई कि कुछ अरसे बाद उतैबा अपने बाप अबू लहब के साथ शाम की तिजारती सफर पर रवाना हुआ। एक जगह पड़ाव किया, वहां एक गिरजा था। वहां के लोगों ने बताया कि यहाँ तो शेर ऐसे घूमते हैं जैसे आम इलाकों में बकरियां घूमती हैं। अबू लहब को नबी करीम अलैहिस्सलाम की बद्दुआ याद थी। उसने दीगर काफिले वालों से कहा कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ सुनी है और वो बद्दुआ अपने बेटे के बारे में सख्त फिक्रमंद है। बस तुम सारा सामान गिरजा के सहन में जमा कर दो और मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो, फिर इस सामान के गिर्द तुम सब सो जाओ।
काफिले वालों ने ऐसा ही किया। रात जब सब सो गए तो जंगल से शेर आया, तमाम काफिले के लोगों के सूंघा मगर किसी को कुछ नहीं कहा। वो तो गुस्ताखे रसूल की तलाश में था। शेर ने पीछे हटकर एक ऊंची छलांग लगाई। सामान के बुलंद ढेर पे चढ़कर उसने उतैबा के चेहरे को सूंघा और चीर फाड़ दिया और उसका सर खोल दिया। इस वाक़े पर अबू लहब का बड़ा बुरा हाल था और वो कहे जा रहा था, मैं जानता था कि मेरा बेटा मोहम्मद की बद्दुआ से कभी बच न सकेगा। फतेह खैबर के बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इत्मीनान से बैठे तो एक यहूदिया ज़ैनब बिन अल हारिस ने नबी करीम के कत्ल की नापाक साजिश की और एक बकरी का गोश्त जहर आलूद करके नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया किया। उस औरत ने गोश्त भेजने से पहले मालूम किया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को कौन से हिस्से का गोश्त ज्यादा मरगूब है। बताया गया दस्ती का गोश्त ज्यादा मरगूब है, तो उसने दस्ती को बहुत ज्यादा मसमूम किया और उसके बाद वो गोश्त अच्छी तरह भून कर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया किया। आपने दस्ती का गोश्त उठाया, एक नवाला मुंह में लिया मगर उसे निगला नहीं बल्कि उसे वापस उगल दिया और फरमाया कि इस बकरी की हड्डी मुझे खबर दे रही है कि इसे जहर आलूद किया गया है। उस औरत को बुलाया गया, उसने इकरार किया कि उसने ऐसा ही किया था। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी कौम के साथ जो मामला किया वो आपके सामने है। मेरा इरादा था कि आपको अगर आम बादशाहों की तरह होंगे तो इस जहर से नाउज़ुबिल्लाह हलाक हो जाएंगे और मैं राहत पाऊंगी, और अगर आप वाकई नबी हैं तो अल्लाह आपको इसकी खबर देगा। इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उस वक्त तो माफ कर दिया, मगर बाद में इस जहर के असर से हजरत बशीर रदियल्लाहु अन्हु की शहादत हो गई। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके क़िसास में इस औरत को कत्ल कर दिया। ग़ज़वे अहज़ाब जिसे जंग खंदक भी कहते हैं, इस जंग से कबल जब खंदक खोदी जा रही थी तो एक बहुत बड़ा और सख्त पत्थर हाइल हुआ। बहुत जोर लगाया लेकिन न टूटा। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला की गई। आका करीम तशरीफ लाए और कुदाल से एक ज़रब लगाई, चिंगारियां निकली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोम फतह हो गया। फिर दूसरी ज़रब लगाई, चिंगारियां निकली और आका करीम ने फरमाया ईरान फतह हो गया। फिर तीसरी ज़रब लगाई और चिंगारियां निकली। आका करीम ने फरमाया खुदा की कसम बहरैन के सुर्ख महल्लात मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। बाद में आने वाले दिनों में रोम और ईरान तो बहुत जल्द फतह हो गए और रोम के भी मुतादिद इलाके ज़ेर इस्लाम आ गए। सिर्फ कुस्तुनतुनिया का शहर बाकी रह गया। इस शहर को फतह करने के लिए और नबी करीम अलैहिस्सलाम की पेशनगोई पूरी करने के लिए कमोबेश 14 बादशाहों ने लश्कर कशी की और 800 साल बाद कुस्तुनतुनिया का ये शहर भी इस्लाम के ज़ेर नगी आ गया और सच्चे नबी की पेशनगोई पूरी हो गई। इसी तरह ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब सबने पेट पे पत्थर बांध रखे थे तो एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर गए और बकरी का बच्चा ज़िबह किया और साथ ही घर वालों को मयस्सर आटे से रोटियां पकाने का कहकर आका करीम के पास हाजिर हुए और कान मुबारक में अर्ज की के साथ 8 अफराद का खाना तैयार है, तशरीफ ले आइए। आका करीम अलैहिस्सलाम 60-70 अफराद के साथ पहुंच गए। इस सहाबी के चेहरे पे परेशानी के आसार होते देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया थाली हटाए बगैर सालन निकालते रहो और ऊपर से रुमाल हटाए बगैर रोटियां निकालते रहो। इस तरह उस 7-8 अफराद के खाने को 70 अफराद ने शेर होकर तनावुल किया और मेहमानों के चले जाने पर पहले जितना खाना फिर भी बाकी धरा था। खातिम नबीयीन अलैहिस्सलाम के बेशुमार मोजज़ात हैं। तमाम मोजज़ात को इन सतूर में बयान करना मुमकिन नहीं। वाक़या मेराज एक बहुत बड़ा मोजज़ा है जो कि खुद एक अलहदा बाब है। बारगाह इलाही में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने अहकामात और नबी करीम अलैहिस्सलाम की कामिल इत्तिबा इख्तियार करने वाला और नबी करीम अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक बनाए, आमीन। अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग इस्लाम की पादाश में मुश्किलात, मसाइब, तकालीफ, आज़माइशों, अज़ियतों और इम्तिहानात से दो चार होना पड़ा। मक्के में जानलेवा मजालिम, जानिसारों की मजलूमाना बेबसी और हब्जे की जानिब हिजरत, शेब अबी तालिब का 3 साला मुहासरा और मकाता, सोशल बायकॉट, कुरैशियों के सितम का ना खत्म होने वाला सिलसिला, यहाँ तक कि अबू लहब और उक़बा बिन अबी मुईत के हुक्म पर आपके सर पर गलाज़तें उंडेली गई। इन्हीं दुश्मन इस्लाम के कहने पर आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए। इन्हीं के इशारे पर काशाने नबवी में बर्तनों को खराब किया गया, पकती हुई हंडिया को औंधा किया गया। खुदा ताला के हलाल करदा रिज्क में हराम पलीदी डाली गई। आपके जिस्म मुबारक के ऊंटों के ओज ढाले गए। गर्दो गुबार से जिस्म और लिबास मुबारक आलूदा करने की बेबाकाना जिसारत भी की गई। आका करीम अलैहिस्सलाम की साहिबजादियां ये सूरत हाल देख के दिलगीर हुई और उनकी जुबान मुबारक से बद्दुआ या जुमले निकले तो आपने फरमाया, ए बेटी दिलगीर न हो, तेरे बाप का अल्लाह खुद मुहाफिज है। गोया जुल्म सितम, अजियत, तकालीफ,
ज़हनी कोफ्त और जिस्मानी तशद्दुद जैसा वहशियाना और गैर इंसानी बर्ताव आपसे बरता गया, लेकिन इन सब के बावजूद आपके सब्र तहम्मुल, अफ़्व दरगुजर, ज़ब्त बर्दाश्त और इख्तिलाल में ज़र्रा बराबर कमी न आई और आज तक तारीख का वर्क आपके रहम करम, अजीमत, साबित कदमी और फराग़ी हौसला की दास्तानें सुना रहा है। जब मक्के के बच्चे दुश्मनी करने से न बचे तो आपने मक्के के बाहर की तरफ नजर दौड़ाई और ताइफ की तरफ सफर का इरादा किया। वो हादी जो न हो सका गैरुल्लाह से गायब चला, एक रोज मक्के से निकल कर जानिब ताइफ मक्का से तकरीबन 40 मील के फासले पे खूबसूरत वादी, जरखेज बागात और पहाड़ों से मुज़य्यन इलाका है। मक्के के सरदारों ने यहाँ कोठियां बना रखी थीं। कबीला सुकैफ यहाँ आबाद था। यह अरब का ताकतवर कबीला था। कुरैश की इस कबीले से रिश्तेदारियां भी थीं। यहाँ 3 भाई अब्दुलैल, मसूद और हबीब इस कबीले के सरदार थे। बासत नबवी का 10वां साल शव्वालुल मुकर्रम का माह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरीज़े तबलीग के लिए गालिबन पैदल यहाँ पहुंचे। आका करीम के साथ हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु थे। 10 दिन यहाँ क़याम फरमाया। अवाम ख़िवास के सामने दीन इस्लाम को पेश किया। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के मकानों पर तशरीफ ले गए और उन्हें दावत इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन सब ने बेरुखी का मुजाहिरा किया। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ के सरदारों अब्दुलैल, मसूद और हबीब के पास तशरीफ ले गए और उनके सामने अपने आने का मकसद वाज़ेह फरमाया। लेकिन उन बदकिस्मतों की बदनसीबी तो देखिए कि उन्होंने आपकी दावत को न सिर्फ ठुकराया बल्कि गुस्ताखाना रवैया अपनाते हुए मजाक उड़ाया। एक ने तंज का निश्तर चुभ होते हुए कहा कि अगर खुदा तआला ने तुझे रसूल बना के भेजा है तो वो खाना काबा की इज्जत पामाल कर रहा है। दूसरे ने फबती कसते हुए कहा, अल्लाह को तेरे अलावा और कोई नहीं मिला जिसे वो रसूल बना के भेजता। तीसरे ने आवाज कसते हुए कहा कि अल्लाह की कसम मैं तेरे साथ बात नहीं करता, अगर तू वाकई अल्लाह का रसूल है जैसा कि तेरे दावा है तो रसूल की शान ये नहीं कि उससे बहस की जाए, और अगर तू खुदा पर झूठ बोल रहा है तो मेरी शान ये नहीं कि तुझ जैसे झूठे से बात करूं। उसके बाद इन हरमा नसीबों ने ताइफ के उबाशों और आवारा गर्दों को आपके पीछे लगा दिया। कोई ताली बजाता, कोई सीटी बजाता, कोई जुमले कसता, कोई हुल्लड़बाजी करता, शोर हड़भोंग और उधम मचाते आपको ताइफ की गलियों में ले आए। यहाँ दोनों अतराफ के लोग सफ बनाए पत्थर हाथों में लिए खड़े थे। जब आपका गुजर वहां से हुआ तो उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम को पत्थर मारना शुरू किए। सरे मुबारक से लेकर पांव मुबारक बल्कि नालैन मुबारक तक लहूलहान हो गए। पिंडलियों और घुटनों पर गहरे जख्म आए। बदन मुबारक से खून मुबारक बहता बहता कदमों तक पहुंचा। कदमों से रस्ता हुआ नालैन मुबारक पहुंचा। नालैन और कदमैन आपस में खून की वजह से चिमट गए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा आपको बचाने के लिए कभी आगे आते, कभी दाएं बाएं और कभी पीछे। उनका भी सर लहूलहान हो गया। पत्थरों की बरसती बारिश में कभी आप बैठ जाते तो ताइफ वाले आपकी बगलों में हाथ डालकर आपको दोबारा खड़ा करते। चंद कदम चलते फिर बैठ जाते और दोबारा आपकी बगलों में हाथ डालकर खड़ा करते और पत्थर बरसाते। लगता है जब कोई कंकर बदन पर दीन की खातिर तो मुझको वादिये ताइफ के पत्थर याद आते हैं। जब आप बेहोश होकर गिर पड़े तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने आपको उठाया। करीब ही कुछ पानी था, वहां ले गए ताकि खून के धब्बे धोएं। कुछ देर बाद तबीयत संभली तो करीब में एक बाग था और अंगूर की सायादार बेल के नीचे थोड़ी देर लेट गए। माबूद बरहक की बारगाह में आबिद हक परस्त बनकर मुनाजात और दुआ में मशगूल हो गए। आपकी सूजो गुदास, तड़प और दर्द और जख्मों की टीस से नालाए फरियाद में वो तासीर पैदा की जिससे अर्श बनी तक कांप उठा। इस मौके पर आपने बारगाह इज़्दी में दुआ की, ऐ अल्लाह मैं तुझी से अपनी बेबसी का शिकवा करता हूँ। ये मुझे रुस्वा करना चाहते हैं, इसका शिकवा भी तुझी से करता हूँ। ऐ सारे मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान, ऐ मेरे परवरदिगार, आप मुझे किनके हवाले कर रहे हैं जो मुझसे दूर हैं, जो मुझसे मुंह चढ़ा के बात करते हैं। ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं और अगर मुझ पर तेरा इताब नहीं तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं। खुदावंद तेरी आफियत का दामन बहुत वसी है। ऐ अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूं इससे कि मुझ पर तेरा गजब पड़े या इताब नाजिल हो। तुझी को मनाना है और उस वक्त तक मनाना है जब तक तू राजी ना हो जाए। यहां से उठे। करने अशालिब पहाड़ी सामने थी। ऊपर नजर उठाई, बादल ने आप पे साया किया हुआ था। बादल पे नजर जमाई तो उसमें जिब्राइल अमी जलवा अफरोज थे और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने सुन लिया, देख लिया। तुमने जो कुछ फरमाया, उन्होंने जैसा सलूक किया, सबका सब देख लिया और सुन लिया। ये मेरे साथ मलकुल जबाल पहाड़ों की निगरानी पर मुकर्रर फरिश्ता मौजूद है। आप हुक्म दीजिए, ये तामील करेंगे। मलकुल जबाल ने अर्ज की, मुझे अल्लाह ने भेजा है, आप जो चाहें हुक्म करें, मैं तामील करूंगा। आप हुक्म दे,
मक्के की दोनों तरफ के पहाड़ों को मिलाकर इन तमाम बेअदब और गुस्ताखों को पीस डालूं। आका करीम अलैहिस्सलाम आजमाइश के दो राहे पे खड़े थे। एक आजमाइश अहले ताइफ ने आप पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, दूसरी आजमाइश के जिब्राइल अमी और मलिकुल जिबाल उनको पीस डालने की फरमाइश के मुंतजिर खड़े हैं। पहला इम्तिहान था सब्र ज़ब, तहम्मुल व बर्दाश्त और इस्तिक़लाल का। दूसरा इम्तिहान था दावा रहम करम का, फरागी हौसला और वुसअत ज़र्फी का। अल्लाह करीम ने आपको दोनों में कामयाब करवाया। दरिया दिली और दिल रहमत में एक मौज उठी और अहले ताइफ की किस्मत के सफीने को पार लगा दिया। फरिश्तों को जवाब दिया, अगर ये बदनसीब ईमान नहीं लाए तो क्या हुआ? आने वाली नस्ल से हरगिज नाउमीद नहीं हूँ। मुझे अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन है और भरोसा है कि वो इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह की तौहीद के कायल और शिर्क से बेजार होंगे। करीब ही मक्के के मशहूर सरदार उतबा और शीबा बिन रबिया का बाग था। उस वक्त ये दोनों भाई वहां मौजूद थी। उन्हें गैरत आई कि हमारे शहर के एक मुअज़्ज़िज़ शख्स से ताइफ वालों ने बहुत नारवा सलूक किया। गैरत तो आई लेकिन शर्म फिर भी ना आई। इखलाकी हिम्मत पैदा नहीं हुई कि खुद आकर आपसे बातचीत करते। चुनाचे अपने गुलाम को अंगूरों के खोशे देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। इसका नाम इदास था और वो मज़हबन ईसाई था। आपके पास आया, अंगूर पेश किए। आपने अंगूर खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो ज़बान मुबारक पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जारी हो गया। इदास कहने लगा, यहाँ के लोग तो अर्रहमान अर्रहीम नहीं कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहाँ के हो? उसने जवाब दिया कि नैनवा। आपने फरमाया, वही नैनवा जो मेरे भाई हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वतन था। वो हैरत ज़दा होकर पूछने लगा कि आप यूनुस अलैहिस्सलाम को कैसे जानते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मेरे और उनके दरमियान नबूवत का रिश्ता है। वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ। इदास की सुनकर उसी वक्त मुसलमान हो गया। इदास के कबूल इस्लाम ने गोया आपके जख्मों पर मरहम का काम किया। ताइफ से वापसी पर जिन्नात की एक जमात ने इस्लाम कबूल किया। सफर ताइफ से ये सबक मिलता है कि दीन इस्लाम की तबलीग के लिए इंतहाई कठिन और मुश्किल हालात भी आए तो साबित कदमी और खंदा पेशानी से बर्दाश्त करने चाहिए। तबलीग की मेहनत का नतीजा अगर वक्ती तौर नजर न भी आए तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। मेहनत का समरा कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला जरूर अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने जमीन पर इंसानों के लिए बेशुमार नेमतें अता की, जिनमें बहुत सी जरूरियात जिंदगी, जिनमें खुराक, पानी, पनाहगार, खुदा की दीगर कुदरती तोहफे शामिल हैं। ग़िज़ा दुनिया में हर इंसान के लिए जरूरी है। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जिस किस्म का खाना सामने आता तनावुल फरमाते और न ही किसी किस्म के खाने के लिए खास एहतमाम फरमाते। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ग़िज़ाओं को उनके जायके और फवाइद की वजह से बहुत पसंद फरमाते थे। खजूर अहले अरब अमूमन खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खजूर की बड़ी तारीफ फरमाई, खुसूसन अजवा खजूर की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत ज्यादा पसंद थी और उसका बहुत इस्तेमाल फरमाते। रसूलुल्लाह का इरशाद है कि जो शख्स रोजाना सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करे उसे उस दिन जहर और जादू से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। एक और जगह इरशाद है कि अजवा जन्नत का फल है, इसमें जहर से शिफा देने की तासीर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोगन जैतून को बहुत पसंद फरमाया है। नबी करीम रोटी को रोगन जैतून से चौपड़ करके तनावुल फरमाते। कुरान में जैतून का जिक्र आया है। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जैतून का तेल खाओ और मालिश में इस्तेमाल करो, इसलिए कि वो मुबारक दरख्त से पैदा होता है। दूध रसूल करीम अलैहिस्सलाम की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। नबी करीम अलैहिस्सलाम को दूध बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई चीज ऐसी नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के। शहद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था और उसका बहुत इस्तेमाल फरमाते। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलाम शहद पसंद फरमाते। शहद की शिफा बख्शी का जिक्र कुरान में भी आया है और इसे मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज करार दिया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्जियों में कद्दू बहुत पसंद था। हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु से हदीस मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दावत में जौ की रोटी और कद्दू गोश्त का शोरबा पेश किया गया। मैंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा कि प्याले के किनारे से कद्दू तलाश फरमाकर तनावुल फरमा रहे थे। मैं उस रोज के बाद हमेशा कद्दू को पसंद करने लगा। जौ की रोटी नबी करीम अलैहिस्सलाम की मरगूब ग़िज़ाओं में शामिल रही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी को बहुत पसंद फरमाते।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी में कभी भी मैदे की रोटी तनावुल नहीं फरमाई। अबू दाऊद में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ की रोटी का टुकड़ा लिया और उस पर खजूर रखी और फरमाया कि ये इसका सालन है और तनावुल फरमा लिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका भी बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ सिरके को तनावुल फरमाया बल्कि इसकी तारीफ भी फरमाई। हदीस में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सिरका भी कैसा बेहतरीन सालन है। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम मेरे घर तशरीफ लाए और फरमाया कि तेरे पास खाने के लिए कोई शय है? मैंने अर्ज किया, सूखी हुई रोटी और सिरके के सिवा कुछ नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही ले आओ। वो घर सालन से खाली नहीं जिस घर में सिरका हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा गोश्त थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और जन्नत दोनों जगह सब खानों का सरदार गोश्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त शौक से तनावुल फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कहीं से बकरी का गोश्त आया। इसमें से दस्त का गोश्त खिदमत अक़दस में पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दांतों से काट के तनावुल फरमाया। इंजीर भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजीर जन्नत का फल है। अंगूर हज़रत सईदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के खोशे इस तरह तनावुल फरमाते देखा कि छोटा सा खोशा मुंह में लेकर दाने तोड़े और तिनकोल को बाहर खींच लेते। वफात से 3 रोज कबल जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ फरमा थे, तमाम अज़वाज मुतहरात जमा हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करवाओ। इरशाद फरमाया, क्या तुम मुझे इजाजत देती हो कि बेवारी के दिन में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ गुजारूं? सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको इजाजत है। फिर उठना चाहा लेकिन उठ ना पाए। हज़रत अली बिन अबी तालिब और हज़रत फज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा आगे बढ़े और नबी अलैहिस्सलाम को सहारे से उठाकर सईदना मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे से सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। उस वक्त सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने पहली बार बीमारी और कमजोरी के हाल में देखा तो घबराकर एक दूसरे से पूछने लगे, रसूलुल्लाह को क्या हुआ? चुनाचे सहाबा मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद शरीफ में रश हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने जिंदगी में किसी का इतना पसीना बहते न देखा, और फरमाती हैं मैं रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसी को चेहरे अक़दस पे फेरती, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज्यादा मोहतरम व पाकीज़ा था। मज़ीद फरमाती हैं कि हबीब खुदा से बस यही वर्द सुनाई दे रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी अपनी सख्तियां हैं। इसी असना में मस्जिद के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बीमारी के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये कैसी आवाजें हैं? अर्ज किया गया, ए अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफजदा हैं। इरशाद फरमाया कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ न सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मुश्कीज़ें पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ इफाका हुआ तो सहारे से उठाकर मिंबर पे लाया गया। ये रसूलुल्लाह का आखिरी खुतबा था और आखिरी कलिमात थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। ए लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। खुदा की कसम, गोया कि मैं यहीं से ए हौज़े कौसर देख रहा हूँ। ए लोगो, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओ, जैसा कि तुमसे पिछली उम्मतों वाले लग गए, और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर दे जैसा कि उन्हें हलाक कर दिया। ए लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे और यही बात बार बार दोहराते रहे। ए लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। फिर फरमाया, ए लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उससे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। इस जुमले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई न समझा, हालांकि उनकी अपनी जात मुराद थी, जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वो तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारो क़ितार रोने लगे और बुलंद आवाज से गिरिया करते हुए उठ खड़े हुए और पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान,
हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पे कुर्बान, हमारे मालो दौलत आप पे कुर्बान। आप रोते जाते और यही अल्फाज कहते जाते। साहबा कराम रदियल्लाहु अन्हु नागवारी से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की तरफ देखने लगे कि उन्होंने नबी की बात कैसे कता कर दी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर का दिफा इन अल्फाज में फरमाया, ऐ लोगो, अबू बकर को छोड़ दो कि तुम में से ऐसा कोई नहीं जिसने हमारे साथ कोई भलाई की हो और हमने उसका बदला ना दिया हो सिवाय अबू बकर के कि उसका बदला मैं ना दे सका। इसका बदला मैंने अल्लाह जल्ल शानहू पे छोड़ दिया। मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के दरवाजे के जो कभी बंद ना होगा। आखिर में अपनी वफात से कब्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दुआ के तौर पे इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी मदद करे। और आखिरी बात जो मिंबर से उतरने से पहले उम्मत को मुखातिब करके इरशाद फरमाई, ऐ लोगों, कयामत तक आने वाले मेरे हर उम्मती को मेरा सलाम पहुंचा देना। ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सहारे से उठाकर घर ले जाया गया। इसी असना में हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। उनके हाथ में मसवाक थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक को देखने लगे मगर शिद्दत मर्ज की वजह से तलब न कर पाए। चुनांचे सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने से समझ गई और उन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान से मिसवाक लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिने मुबारक में रख दी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे इस्तेमाल न कर पाए तो सईदा आयशा ने हुजूर अकरम से मिसवाक लेकर अपने मुंह से नरम की और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटा दी ताकि दाहिने मुबारक उससे तर रहे। फरमाती हैं, आखिरी चीज जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में गई वो मेरा लुआब था और ये अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर फजल ही था कि उसने विसाल से कबल मेरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन यकजा कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रो पड़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ लाई और आते ही रो पड़ी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ ना सके, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब भी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ लाती तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माथे पे बोसा देते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा करीब आ जाओ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कोई बात कही तो हजरत फातिमा और ज्यादा रोने लगी। उन्हें इस तरह रोता देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए फातिमा करीब आओ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कोई बात इरशाद फरमाई तो वो खुश होने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि वो क्या बात थी जिस पे रोईं और फिर खुशी का इजहार किया था, पहली बार जब करीब हुई तो फरमाया, फातिमा मैं आज रात इस दुनिया से कूच करने वाला हूं जिस पे मैं रो दी। जब उन्होंने मुझे बेतहाशा रोते देखा तो फरमाने लगे, फातिमा मेरे अहले खाना में सबसे पहले तुम मुझसे आमिल होगी, जिस पर मैं खुश हो गई। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझे फरमाया, आयशा मेरे करीब आ जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे वो आला उम्दा रफाकत पसंद है। मैं अल्लाह की अंबिया, सद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की रफाकत को इख्तियार करता हूँ। मैं समझ गई कि उन्होंने आखिरत को चुन लिया है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम खिदमत अक़दस में हाजिर होकर गोया हुए, या रसूलल्लाह मलिकुल मौत दरवाजे पर खड़े शर्फ़े बारियाबी चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलामु अलैका या जिब्राईल, उसे आने दो। आपसे पहले उन्होंने किसी से इजाजत नहीं मांगी। मलिकुल मौत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए। रसूलल्लाह, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में रहना चाहते हैं या अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास जाना पसंद करते हैं। फरमाया, मुझे आला उम्दा रफाकत पसंद है, मुझे आला उम्दा रफाकत पसंद है। मलिकुल मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राजी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गज़बनाक नहीं। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नीचे आ रहा और सर मुबारक सीने पे भारी होने लगा। मैं समझ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ दरवाजा खोलकर कहा, रसूल अल्लाह का विसाल हो गया, रसूल अल्लाह का विसाल हो गया। मस्जिद आहों और नालों से गूंजने लगी। उधर अली करमल्लाहु वजहुल करीम खड़े थे, जहां वहीं बैठ गए। फिर हिलने की ताकत न रही।
उधर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे और सईदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार बुलंद करके कहने लगे, खबरदार, जो किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह वफात पा गए हैं, मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका तो अल्लाह से मुलाकात करने गए हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मुलाकात को गए थे। वो लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट आएंगे। अब जो वफात की खबर उड़ाएगा मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। इस मौके पर सबसे ज्यादा ज़ब्त, बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की थी। आप हुजरा नबवी में दाखिल हुए, रहमत दो आलम के सीने मुबारक पे सर रख के रो दिए। कह रहे थे, हाय मेरा प्यारा दोस्त, हाय मेरा मुखलिस साथी, हाय मेरा महबूब, या रसूलल्लाह, आप पाकीज़ा जिए और पाकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पे बोसा दिया और बाहर आ गए। सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर आए और खुतबा दिया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है सुन रखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ताला शानहू की जात हमेशा जिंदगी वाली है जिसे मौत नहीं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि फिर मैं कोई तन्हाई की जगह तलाश करने लगा और सईदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से तलवार गिर गई। वो तन्हाई की जगह तलाश करने लगे जहां अकेले बैठ के रोएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन की गई। सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगी, तुमने कैसे गवारा कर लिया कि नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पे मट्टी डालो। कहने लगी, मेरे प्यारे बाबा जान कि अपने रब के बुलावे पे चल दिए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि जन्नतुल फिरदौस में अपने ठिकाने को पहुंच गए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि हम जिब्राइल को उनके आने की खबर देते हैं। ये हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम आपकी रोहलत तक के थे। आप अल्लाह ताला के फरमुदादात कुरान मजीद की जीती जागती मिसाल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नौ इंसान पर जो एहसान किया है वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील है, और अल्लाह ताला ही अपने महबूब तरीन पैगंबर का रोहलत के बाद मुहाफिज़ो अमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमन कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।